رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد في القرآن الحميد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتكم على ملة بيضاء ليلها كنهارها صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، میرے لیے نہایت خوشی کی بات ہے کہ میں ایسے ننھے مننے بچوں کی تقریب میں شریک ہو رہا ہوں کہ جنہوں نے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا قصد کیا۔ میرے زندگی کے سارے اعمال بھی اللہ اگر ایک طرف رکھتے نا تو مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا یہ سفر رائے گا نہیں فرمائے گا۔ میرے اللہ ضرور ضرور اس کو میزان میں جو ہے وہ وزنی قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمائیں گے کہ عبدالوارث تم میرے ان بچوں کی، ان میرے بندوں کی، ان چھوٹے ننھے مننے جو بھی شعور کی حد تک بھی نہیں پہنچے، اور وہ بچے کہ جو محض ٹوٹا پھوٹا وضو کر کے آیا کرتے تھے، وہ جو باغ دوڑ کیا کرتے تھے، وہ کہ جن کو ہمارے لوگ، ہمارے بڑے علماء اکرام کسی خاطر میں نہیں لاتے، اوہ انہوں نے مسجد کو آباد کیا، تو تو نے جو اس کے لیے سفر کیا تھا، مجھے غالب گمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو رائے گا نہیں فرمائے گا۔ تو میرے لیے نہایت مسرت کی بات۔ جامعہ محمدیہ میں بھی آج بیان تھا، جیسے برہان بھائی نے بتایا کہ القلم کا بھی پروگرام تھا، لیکن اس پروگرام کا مجھے انتظار بھی تھا اور شرکت کا شوق بھی تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا یہاں پہ آنا، ان بچوں میں بیٹھنا سے قبول فرمائے۔ بہلول دانا ایک بار دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کے ریت کے گھر بنا رہے پاؤں پہ، اور گھر بنا کے کہتے کہ کوئی جنت کے گھر خریدے گا؟ کون ہے جو جنت کے گھر خریدے گا؟ جنت کے گھر خرید لو، جنت کے گھر خرید لو، جنت کے گھر خرید لو۔ ہارون الرشید اور ان کی اہلیہ محترمہ زبیدہ رحمہ اللہ تعالی وہ سیر کے لیے صبح صبح نکلے، اور جب انہوں نے بہلول دانا کو دیکھا کہ یہ تو جنت کے گھر بیچ رہا ہے، زبیدہ نے کہا کہ بہلول کتنے کا ہے؟ یہ جو جنت کے گھر بنا رہے ہو، بظاہر تو مٹی پاؤں پہ جمع کرتے ہو، پاؤں نکالتے ہو، گھر کی صورت بن جاتی ہے، کتنے کا ہے یہ گھر؟ کہا کہ 1 درہم کا۔ 1 درہم دیا اور اس نے دریائے دجلہ میں اس کو ڈالا۔ ہارون نے کہا کہ وہ تو دیوانہ ہے، تم بھی اس کے ساتھ دیوانہ ہوا چاہ رہی ہو؟ کہا کہ آپ چلیے، ہم دیوانوں کی بات چھوڑیے آپ۔ ہارون الرشید اپنی خوابگاہ میں جب رات کو پہنچے، اور رات کو خواب میں جب پہنچے، نیند آئی، گہری نیند میں جب پہنچے، خواب دیکھا کہ فرشتے ان کو جنت کی سیر کروا رہے ہیں، اور جب جنت کی سیر کروا رہے ہیں تو ایک گھر دیکھتے ہیں جس کے باہر لکھا ہوا ہے ھذا بیت زبیدہ، کہ یہ زبیدہ کا گھر ہے جنت میں۔ کہا مجھے دیکھنے نہیں دو گے؟ تو جب دیکھنے کے لیے وہ آگے ہوئے تو فرشتوں نے روک دیا، کہا کہ نہیں، یہ زبیدہ، کہا زبیدہ میری بیوی ہے، کہا کہ ایمان کی حالت میں دونوں جنت میں آئیں گے تب آپ اس گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں کون کس حالت میں آتا ہے۔ صبح اٹھے، پسینے سے شرابور تھے، اور آنکھ کھلی اور دیکھا، بھاگے دریائے دجلہ کی طرف اور بہلول دانا کو تلاش کیا، ایک کونے میں پایا۔ کہا بہلول کل تو تم صبح گھر بیچ رہے تھے، آج نہیں گھر بیچ رہے جنت کے؟ کہا بیچ رہا ہوں۔ کہا کتنے کا ہے؟ کہا آدھی ریاست لگے گی۔ کہا کہ کیا بات کر رہے ہیں، کل تو تم نے جو ہے وہ 1 درہم میں زبیدہ کو۔ کہا زبیدہ نے بن دیکھے سودا کیا تھا، تم رات کو خواب میں دیکھ کر آ رہے۔
मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, ये ईमान की जो नेमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है, और बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति, और जन्नत की बशारतें दे रहे हैं। इताअत और इत्तिबा पे जन्नत की बशारतें हैं, इताअत और इत्तिबा पे दोज़ख से जो है वो निजात की बशारतें हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में भी फलाह व बहबूद और आखिरत में भी कामयाबी और कामरानी की जो जमानतें दे रहे हैं, वो बिन देखे का सौदा है। आज तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला 5 नमाजों पे 50 नमाजों का अजर देने के लिए जो है वो अल्लाह राजी है, अल्लाह मान रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, जिस दिन आंख बंद होगी और हकीकी आंख खुलेगी, और उस दिन जब हमने कहा कि नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जस्ट गिव मी वन चांस, नहीं मेरे दोस्तों, ये आज का सौदा है, मान लीजिए। एक बुजुर्ग ने कहा कि क्या कर रहे हो यहां पे? कहा कि अल्लाह के बंदों की अल्लाह के साथ सुलह करवाने की कोशिश कर रहा हूं। कहा कि अल्लाह तो मान रहा है, बंदे नहीं मान रहे। पता नहीं किस हठधर्मी में पड़े हुए हैं, पता नहीं किस गलतफहमी में पड़े हुए हैं। बंदे नहीं मान रहे कि दुकान, कारोबार, मकान, खानदान के चक्कर में है। अल्लाह तो कह रहे हैं कि सुलह कर लो। एक दिन कब्रिस्तान में पाए गए वो, और कब्रिस्तान में पूछा किसी ने कि आज यहां पर क्यों खड़े? कहा कि अल्लाह और उसके बंदों की सुलह करवाने की कोशिश कर रहा हूं। कहा आज बंदे तो मान रहे हैं, अल्लाह नहीं मान रहे। ये जब ज़ाहिरी आंखें बंद होगी, हकीकी आंखें खुलेगी, तो माल औलाद, अहलो अयाल फिदिये में देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हमसे सौदा तब तक है जब तक ये ईमान बिल गैब है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ मेरे बंदो, कहां जा रहे हो अपने रब्बे करीम, रब्बे रहीम को छोड़ के? और वो जो 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, और जिसने आसमान को तुम्हारे लिए जो है वो छत बना दिया, जिसने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बना दिया, वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो? वो अपने रब्बे रहीम को छोड़ के, और जिसने तुम्हें माल औलाद अता फरमाया, जिसने बीवियां अता फरमाई, जिसने घर बार अता फरमाया, जिसने मुआशरे में सुकून अता फरमाया, और जिसने इज्जत रिफात और मुकाम मर्तबा अता फरमाया, उसी रब को छोड़ के कहां जा रहे हो? ओए, तुम समझते हो कि दुकान, मकान, कारोबार, खानदान से इज्जत मिलती है? नहीं। शाम का मामला जब हुआ तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब गए, और कभी जो है वो गुलाम ऊंट पर है और कभी गुलाम का आका ऊंट पर है, और एक मुकाम ऐसा भी आया कि कीचड़ से गुजर के उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे, और पांव कीचड़ से भरे हुए हैं। उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे और कहा कि अमीरुल मोमिनीन वहां पे कैसर और किसरा के जो है वो नुमाइंदगान पहुंचे हुए हैं, बादशाह हैं, उनसे जो है वो मामला होना है, तो अच्छी सवारी, अच्छे कपड़े, और जरा थोड़ा सा इंसानी जहन में ये आता है कि होना भी चाहिए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि उबैदा, अबू उबैदा, अगर तुम्हें मैंने गवर्नर बना के ना भेजा होता तो मैं तुम्हें दुर्रे लगाता कि जिस इस्लाम ने हमें एक अल्लाह को मानने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और इत्तिबा की वजह से इज्जत अता फरमाई है, तुम वही इज्जत कपड़ों में, अच्छी सवारियों में तलाश कर रहे हो। अगर मुझे तुम्हारे ओहदे का ख्याल ना होता तो तुम्हें दुर्रे लगाता। वो इज्जत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक अल्लाह के ऊपर ईमान लाने के सबब से हमें दी, वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबुव्वत पे मर मिटने की वजह से हमें दी, वो कि जो हमें अल्लाह की इताअत और इत्तिबा की वजह से दी, वो जो कुरान की जो है वो दावत और तबलीग की वजह से दी, आज हम समझते हैं कि नहीं, वो कामयाबी और कामरानी तो दुकान, मकान, कारोबार और खानदान के सबब से मिलने वाली है। नहीं मेरे दोस्तों, आई वॉज ए गोल्ड स्मिथ, मैं सुनार का काम करता था, दुबई में डायमंड का काम करता था, और जब इस्लाम कबूल किया तो सब जीरो पे आ गया, छोड़ दिया। क्या हुआ? जिस अल्लाह ने मुझे मां के पेट में रिज़्क अता फरमाया, खूबसूरत शक्ल अता फरमाई, जिसने वहां पर मुझे जिस्म, हड्डियां, गोश्त, पोस्त, वो दुनिया में जब आया उसने फिर देखते थे, और अगर उसके इस्लाम कबूल करने की वजह से माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार सब ने कता ताल्लुक कर लिया,
छोड़ दिया, सब ने घर से बाहर निकाल दिया। पहले तो मैं अल्लाह से मांग भी नहीं सकता था, अब तो अल्लाह से मांग भी सकता हूं। अल्लाह ने एक बार ज़ाहिरी असबाब को खत्म कर दिया और उसके बाद उलमाए किराम के जूतों में बैठने के सबब से इज्जत अता फरमा दी। ये इस्लाम, कुरान, खत्म नबूवत की बरकत से है। लोग कहते हैं कि हम भूख से ना मर जाए। आपके गुजरांवाला के लोग अजीब लोग हैं। सुबह से 3 जगहों पर गया हूं, इतना खिलाया, मुझे लग रहा था कि मैं खाने से मर जाऊंगा। इतनी मेहमान नवाजी क्यों? अब्दुल वारिस भाई, आपने इस्लाम कबूल किया है, आप अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लेके आए। मैंने कहा कि यार मुझे पानी देना, माजरत चाहता हूं। उसने कहा हमारी जान मांगे, हमारा खून आपके लिए हाजिर है, आपने अल्लाह के दीन को कबूल किया है। यह है इज्जत मेरे दोस्तों। उस्ताद से पूछा कि उस्ताद जी इस्लाम कबूल कर लिया है क्या, अब जरूरी क्या है मेरे लिए? फरमाया कि बेटा आपके लिए जरूरी है नौजवान हो, शादी करो। कहा कि शादी करना चाहता हूं। एक मुसलमान औरत ने अपनी आलिमा बेटी इस ईसाई के बच्चे की गोद में डाल दी, अपने जिगर का टुकड़ा। यह है इज्जत। टाइम इज गोइंग, ये जा रहा है और इतनी तेजी के साथ जा रहा है कि आज हमने असर की नमाज पढ़ी, मगरिब का पता ही नहीं चला। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसी की कसम खा के बताया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। ओए ये बड़े कांटे में है, ये धोखे में है। जो समझते हैं कि जिंदगी अभी बड़ी पड़ी हुई है, नहीं मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, जिंदगी नहीं पड़ी हुई। मैंने कब्रिस्तान में देखा है, वहां बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, जवान भी है, पहलवान भी है, कमजोर भी है, बीमार भी है, हर तरह का। वो किसी का लिहाज नहीं कर रहा। पता नहीं आज की नमाज हमारी अगर बाजमात हुई, सुबह वक्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और रसूलुल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर पूछ लिया कि जब इंतकाल हुआ था फराइज पूरे थे कि नहीं, अल्लाह आखिरी फर्ज अदा किया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे आखिरी फर्ज अदा किया था तो पिछले फर्ज मैं मुआफ करता हूं। अगर जिंदगी में सुकून है तो समझ लीजिए कि नमाजों में भी अल्हम्दुलिल्लाह आफियत है। और अगर नमाजों में आफियत नहीं है तो जिंदगी में सुकून आ ही नहीं सकता, इल्ला ये कि हम नमाजें पूरी न पढ़ें। हाउ इज दिस पॉसिबल? आज जिस फिक्र में हम लगे हुए, मकातील बुजुर्ग थे सलफ में, तो उन्होंने मकातील से पूछा कि मुझे कोई नसीहत फरमाइए। उन्होंने क्या क्या नसीहत? जो मैंने सुना है उसके बारे में, या जो मैंने देखा है उसके बारे में नसीहत? तो कहा कि नहीं, जो आपने देखा है उसके बारे में मुझे नसीहत फरमाइए, मैं खलीफा बन रहा हूं। तो कहा कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने जब इंतकाल किया तो उनके पीछे छोड़ने वाला जो माल था सिर्फ 18 दिरहम थे, जिसमें से 5 दिरहम का कफन दफन हुआ और 4 दिरहम उनकी कब्र पे लगे। बाकी के गालिबन 9 दिरहम जो है वो उनके 11 बच्चों में तकसीम कर दिए गए। और बिल्कुल इसी तरह जब हिशाम बिन अब्दुल मलिक उनका जब इंतकाल हुआ तो उसके भी 11 बच्चे थे और उसने हर एक बच्चे के हिस्से में जो वरासत में उसको मिला 10 लाख दिरहम थे। उसने इनकी दुनिया की परवाह की थी। उसने जब पूछा गया उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से कि आपने औलाद के लिए क्या छोड़ा, तो कहा कि अल्लाह का डर, खौफ और उसका तकवा छोड़ा। और मैं नहीं चाहता कि अगर वो नाफरमान हो तो मैं उसके लिए माल छोड़ के जाऊं कि ताकि वो अल्लाह की नाफरमानी में लगाए। और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं उनके लिए माल छोड़ के जाऊं और वो माल उनको दुनिया में गर्क कर दे। और अगर वो अल्लाह वाले होंगे तो वो तंग दस्ती में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तकवा इख्तियार करेंगे। तो अल्लाह ने तकवे वालों के साथ वादा किया कि मैं उनके लिए मुश्किलात में से रास्ते निकाल लूंगा। तो कहा कि देखा क्या फिर आपने? कहा देखा मैंने ये कि जिस बाप ने तकवा छोड़ा था उसके बच्चों को मैंने देखा कि एक दिन में 1000 घोड़े अल्लाह की राह में सदका कर रहे थे, और जिसके लिए 10 लाख दिरहम उसके बाप ने छोड़े थे, अल्लाह की कसम मैंने बाजारों में उसको भीख मांगते हुए देखा है। ये है मोहब्बत। और अगर हम नमाज नहीं पढ़ रहे तो इस बात का अंदाजा कर लीजिए कि हमने फिर अभी इस्लाम नहीं कबूल किया। हम अल्लाह के रजिस्टर्ड में फिर मुसलमान नहीं हैं।
हाँ, नादरा में हम मुसलमान होंगे। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिंदा हदीस, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसे मानना जैसे उसकी तालीम है, और 5 वक्त की नमाज, इमादुद्दीन, दीन का सतून है। और कितनी 700 मरतबा कुरान में इसका तज़किरा आया। और इससे होता क्या है? इकबाल कहते हैं कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहां फरिश्ते इतने हैं कि एक बार जब कोई सजदा कर लेता है, दोबारा उसको सजदा करने की बारी नहीं मिलती। लेकिन अल्लाह चाहता है कि वो जो अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, वो जो अल्लाह ने कहा था कि क्या मेरे साथ जो तुम्हारा अहद था कि क्या मेरे सिवा भी कोई रब है, मेरे सिवा भी कोई इलाह, सब ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी आप ही हमारे रब हैं। उसकी याद दहानी है इस नमाज में, उसकी याद दहानी है इस नमाज में। पलटना झपटना, झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये तो ईमान को ताजा करने के लिए है। ये तो इसलिए है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह मैं सब कुछ छोड़ता हूं, अल्लाह मैं और तू है, अल्लाह मैं सब कुछ छोड़ता हूं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उस्ताद जी मोहतरम मौलाना मुफ्ती हसन साहब दामन बरकातहू, वो अक्सर फरमाया करते हैं कि दुनिया कमानी कोई गुनाह नहीं है, हलाल जराए के मुताबिक दुनिया कमाए, अल्लाह को नहीं भूलना। यानी जिस मामलात में आप अल्लाह को भूल जाए वो दुनिया है। चाहे आप मस्जिद में बैठ के बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे, अगर अल्लाह से गफलत में है तो ये दुनिया है। और अगर बाजार में बैठ के भी दिल अजान और नमाज में है तो ये दीन है, रिज़्क़े हलाल कमा रहे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? रसूलुल्लाह को फरमाया अल्लाह ने कि ये हबीबुल्लाह है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह, कि अगर मैं अल्लाह का हबीब हूं तो अपने हाथ से रिज़्क़े हलाल कमाने वाला भी, वो भी हबीबुल्लाह है। अल कासिबु हबीबुल्लाह, कि वो भी हबीब है। लेकिन ध्यान किधर? ध्यान रिज़्क़े हलाल में, खिदमत खल्क में, अजान में, नमाज में। और जब नमाज हुई तो फिर सब कुछ बंद। मेरे अल्लाह का हुक्म आ गया ना। यहां सरकार कहती है कि हड़ताल होगी, सब कुछ बंद। क्यों? सरकार है ना। वो जो सरकारों की सरकार है वो किधर बुला रही है? क्या कहती है कि अपना टाइम वेस्ट कर लो? क्या कहती है कि अपने माल असबाब जाया कर लो? नहीं, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। इस वक्त पूरी दुनिया कामयाबी और कामरानी के पीछे जो दौड़ रही है, सबसे बुनियादी और अहम जो सर्च है गूगल के ऊपर, सबसे पूछे जाने वाला सवाल है कि व्हाट इज द सक्सेस? कामयाबी क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं वेयर यू वांट टू गो, कहां जा रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं कामयाबी क्या है। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। ओए इधर है कामयाबी और कामयाबी, ओए मुसलमानों की कामयाबी इधर है। और आज इस कदर बेकदरी नाकदरी इस्लाम की। एक बच्ची को मैंने इस्लाम कबूल करवाया तो मुझे कहने लगी कि अब्दुल वारिस भाई बस अब मुझे निकालिए यहां से, मेरे घर से निकालें, अजान होती है मैं सर पे दुपट्टा नहीं ले सकती, अब्दुल वारिस भाई नमाज होती है मैं नमाज नहीं पढ़ सकती, मुझे निकालिए यहां से। अल्लाह से हया, अल्लाह से शर्म आती है मुझे। और आई मैंने कहा कि बेटा मुझे नसीहत करो और मुसलमानों को भी नसीहत करो। कहा कि अब्दुल वारिस भाई ये की नसीहत है कि 22 साल की उम्र है, खूबसूरत नौजवान पढ़ी लिखी बच्ची, और कहने लगी कि अब्दुल वारिस भाई माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार खानदान सखियां सहेलियां छोड़ के नहीं, दुश्मन बना के आई हूं। मैं मर जाऊंगी ना, जनाजे को कंधा भी नहीं देगी। अब्दुल वारिस भाई आपसे गुजारिश है कि मुसलमानों से कहिए कि जो नेमत इस्लाम मुफ्त में मिल गई है ना, और इसकी कदर करने सीखिए, इससे पहले कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेमत छीन ले हमसे। हमारे बुजुर्ग सलफ में आंखों का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टरों ने कहा सजदा नहीं कर सकते, खाना पीना छोड़ दिया। कहा कि खा क्यों नहीं रहे? कहा कि जिस अल्लाह का खाना सामने है ना, जब उसको सजदा नहीं करता शर्म आती है कि उस अल्लाह को जिसको मैं सजदा नहीं कर पा रहा उसका रिज़्क़ कैसे खाऊं? कहा हम शर्म आ रही है।
डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे की कॉल है कि अब्दुल वारिस वो फलां फलां एक न्यू मुस्लिम, तो उसका इंतकाल हो गया, उसके कफन दफन का इंतजाम कर रहे हैं। मैं शहर से बाहर था, 3 उलमा इकराम को भेजा, उसका जनाजा उठाने के लिए चौथा बंदा नहीं था हमारे पास। ड्राइवर से कहा कि यार थोड़ा सा हाथ लगवा दो, गाड़ी में रखवा दो, और जब कब्रिस्तान में उतारने लगे तो फिर चौथा बंदा नहीं था। जिन लोगों ने इस्लाम के लिए कुर्बानी, उनसे पूछिए कि इस्लाम कितनी बड़ी नेमत है। ये माँ की कोख से मुफ्त में मिल गई है ना, इसलिए कदर नहीं है, इसलिए कदर नहीं है मेरे दोस्त। नहीं मेरे दोस्त, मुसलमान एक बहुत अच्छी कौम है। ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कट मर जाने वाली है। नमाज तो कोई मसले ही नहीं है यार। ये शैतान ने हमें जरा बहकावे में डाल दिया, मानो दौलत की मोहब्बत ने हमारे दिल में घर कर लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई ऐसे मुसलमान देखे। एक बच्चे ने कहा कि अब्दुल वारिस भाई इतने गुनाह करता हूं, इतने गुनाह करता हूं, तौबा करना चाहता हूं, मुझे बताइए। मैंने कहा मुबारक हो। कहता मैं तौबा कर रहा हूं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मैं एक बंदा मोमिन को देख रहा हूं कि जिसको तौबा की फिक्र है। और शहजादे, अल्लाह ने तौबा करने की तौफीक नहीं, अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल कर ली है, क्योंकि तेरे दिल में फिक्र है कि मैं गुनाह छोड़ना चाहता हूं। यहां तो ऐसे लोग भी हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि हम गुनाह कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। कंधे पे हाथ रखा कि अब ज़ारो कतार रोया, दाढ़ी रख ली, नमाजों की पाबंदी, यहां तो कोई मसले नहीं है। ये तो आप लोग तो बड़े अच्छे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से आपकी गर्दनों का खून ले लें, आप देने के लिए तैयार हो जाए। नमाज तो कोई मसले ही नहीं। मस्जिदों को अहद कर ले बस कि नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी, वी आर वेरी सॉरी, वी आर गोइंग टू रॉन्ग साइड। अल्लाह जी, शैतान ने बहका दिया था जालिम ने, ये तो अज़ली दुश्मन है हमारा। नहीं, सुबह इंशाअल्लाह हम पूरे जोशो खरोश से नमाज पढ़े, इरादा कर ले, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीन सदके जाए। किस किस बात के बारे में मज़ामीन के चश्मे फूट रहे हैं दिमाग में, लेकिन वक्त नहीं है कि आपको क्या क्या बताऊं कि इस्लाम की इतनी खूबियां, बेसाख्ता सजदे में गिर पड़ता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका शुक्रिया कि एक चूड़े को आपने नेमत इस्लाम अता फरमा दी, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। ये तो जालिम हमें बहकाना चाहता है। और इरादा कर ले, आज यहां पर बैठे इरादा कर ले कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी, हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे, सारी नमाजें जहां भी होंगे पढ़ेंगे। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी को छूट गई तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। अभी इरादा कर ले, और कल अगर हम ना भी आ सके तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस इरादे का सवाब अता फरमाएंगे। सब मुमकिन ही नहीं है मेरे दोस्त। उस्ताद एक बार बताने लगे, कहने लगे कि अब्दुल वारिस, पंखे की तार को आग लगी, वो तार पिघली, वो क्या ही करीब था कि मेरे बच्चे के हाथ पे गिर जाती और मेरी रूह कांप उठी कि ये पिघलता हुआ प्लास्टिक मेरे बच्चे के हाथ पे जब गिरेगा तो मेरी रूह कांप उठी। कहने लगे कि उसी लम्हे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिल में ये एहसास पैदा फरमाया कि हश्र में जब बच्चों के ऊपर आग गिरेगी तो फिर क्या होगा। कहा कि नहीं, तय कर लिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे मुआफ फरमा दे, सुबह बच्चों के साथ नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा, इन बच्चों को उठा के लेके जाऊंगा। वही नंबरों के लिए हम जो है वो बच्चों को सुबह सर्दियों में उठाते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, स्कूल भगाते हैं। ये तो कामयाबी और कामरानी 40, 50, 60 साल। और जरूरी नहीं है, आई नेवर गो टू स्कूल, मैं कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, लेकिन पढ़े लिखे लोगों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में जाके बयान देता हूं। जरूरी नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन नंबरों की वजह से हमें दुनिया में भी इज्जत अता फरमा दे, ऐसा नहीं है। लेकिन दीन की वजह से ना सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में इज्जतें अता फरमाएंगे, बल्कि आखिरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मैयत और हौज़े कौसर से जाम भी मुयस्सर आएगा मेरे दोस्तों। वही अभी तो हम, अल्लाह के शेरों ने गैर मुस्लिमों तक पैगाम पहुंचाना है, अभी तो गैर मुस्लिमों तक दावत तौहीद पहुंचानी है, अभी तो कुफार और मुशरिकीन तक अकीदा तौहीद पहुंचाना है, खत्मे नबूवत का पैगाम पहुंचाना है। अभी तो हम नमाजों पे कोई ऐसी बात नहीं। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मुझे अल्लाह की कसम पूरा यकीन है कि ये मस्जिद एक दिन इतनी कचाकच भरी होगी कि आपको फिक्र लाहक हो जाएगी कि भाई दाएं बाएं से जगह कुशादा करनी है, इंतजामात की, तो कोई मसला ही नहीं है। मुझे यकीन है अल्लाह ने इस उम्मत मुस्लिमा में बड़ी खैर
बड़ी खैर रखी। हमारे ही इस्लाफ थे कि जिनके बारे में आता है कि दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में शान आंखों में न जचती थी जहां दारों की, कलीमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, तुझसे बरहम हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, ते क्या चीज है हम तोप से भी लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आपकी नस्लों में तो उन इस्लाफ का खून दौड़ रहा है, आपकी नस्लों में उसका खून दौड़ रहा है कि जिसको डॉक्टर ने कहा कि आपका बच्चा सिर्फ 1 दिन जी सकता है। घर में आए, अभी दरवाजा बंद किया, बीवी को हाल बताया, दरवाजे पे नॉक हुई, कहा कौन? कहा कि मौलाना यहां एक कमबख्त खबीस मरज़ई आ गया है, मुसलमानों का ईमान खराब कर रहा है, और आप है कि बाहर नहीं निकल रहे। कपड़े पकड़े, बैग पकड़ा, बीवी ने कहा कि आपके बेटे के पास सिर्फ 1 दिन है। बेटे ने कहा कि अब्बा जान 1 दिन तो मेरे साथ गुजार ले। कहा कि नहीं बेटा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस का मसला है। बस स्टैंड पर पहुंचे, बस स्टैंड पर जाते ही इत्तला मिली कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया। रोते हुए गाड़ी में सवार हुए, कहा कि हजरत जनाजा नहीं पढ़ेंगे? कहा कि जनाजा फर्ज कफाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नामूस पे पहरा देना फर्ज ऐन है। और इन नालायकों, फर्ज ऐन को छोड़ के फर्ज कफाया कौन अदा करता है? चले गए। 3 दिन बाद जब उसको जलीलो रुस्वा करके भगाया, 3 दिन बाद जब घर आए तो बीवी ने रोते हुए बताया कि आपका बेटा आपके लिए एक पैगाम देके गया, और कह रहा था कि अब्बा से कहिएगा कि जब वापिस आए तो कब्र पे आके मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। गए कब्र पे, कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खत्म नबूवत की बरकत से मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। रात सोए, ख्वाब में आया कि अब्बा जान आपकी खत्म नबूवत की खिदमत की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया। गुलाम गौस हजारवी रहमतुल्लाह अलैह, भाई आपकी नस्लों में तो उस शख्स का खून दौड़ रहा है, हम तो उसकी नस्लों से हैं, उसके कबीले से हैं, उसके गांव से, उसके देहात से। मैं तो एक चूड़े का बच्चा हूं और 2000 लोगों को मुसलमान कर चुका हूं। आप तो फिर सैयदजादे हैं यार, भाई आप तो फिर हाशमी घरानों से हैं, आप तो फिर जो है वो इज्जतदार और दीनदार उलमाए किराम की नस्लों में से है आपकी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मस्जिद आबाद होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी मेहनत कैसे ज़ाया करते। अल्लाह आपका शुक्रिया कि उलमाए किराम का साया हमारे सरों पे सलामत है, और उलमाए किराम का साया इस बात की अलामत है कि ये कौम कभी जहालत पर जमा नहीं होगी, ये गुमराही पर कभी जमा नहीं होगी। जब भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस का कोई मसला होगा, यही उलमा हमें मुतलह करेंगे। ये इस बात की अलामत, ये हमारे सरों के ताज है, सीनों की ठंडक है। अल्लाह इनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह आपने 5 वक्त नमाज पढ़ने का इरादा करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह आपका शुक्रिया कि आपने हमें बच्चे ऐसे अता फरमाए कि जिनको हमने बताना था उन्होंने हमें बताया कि नमाज के फजाइल क्या हैं। शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेमतों को बड़ा चढ़ा कर अता फरमाएंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि एक ईसाई घराने में आँख खोली, 20 साल गैरुल्लाह की इबादत में गुजार दिए, शाउर मिला, इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गैर मुस्लिमों में दावत और तबलीग की तौफीक अता फरमाई। लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, मुसलमान बात सुन रहे हैं, अमल पे आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन ये मुआशरा बिल्कुल सीधा साफ सुथरा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तबलीग का पैगाम पहुंचाने वाला, खत्मे नबूवत के ऊपर पहरा देने वाला, अल्लाह की तौहीद का दिफा करने वाला, यही माशरा होगा इंशाअल्लाह। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम होने बाकी है। मौलाना फरमा रहे थे कि ऐसी मजालिस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फरिश्तों को भेजते हैं और वो अपने परों से इनको ढांप लेते हैं। हम अपनी इन ज़ाहरी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त फरिश्ते यहाँ मौजूद हैं। जब ये जाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मेरे बंदे क्या कर रहे थे? फरमाया कि अल्लाह जी आपका जिक्र और अज़कार कर रहे थे, आपका तज़किरा, आपकी हम्द और सना।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، ختم نبوت کے دفاع کے منصوبے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اچھا کام کر رہے تھے، ان سب کو معاف بخشش کا پروانہ جاری کر دو. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عبد الوارث تو وہاں پہ ایسے ہی آگے بیٹھا ہوا تھا. اللہ کہیں گے بیٹھا تو اسی مجلس میں تھا نا، اس کو بھی معاف کر دو. میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل، اپنی رحمت نازل فرمائے. جس طرح آج ہم یہاں پر ہیں، اللہ ہمیں جنتوں میں بھی اسی طرح جمع فرمائے. اللہ ہمیں اپنی نعمتوں پہ خوب شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ختم نبوت کے اوپر خوب پہرا دینے والا بنا دے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا بنا دے، اور ان بچوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.